Hi friends, today we are here to discuss about the causes and the main provisions of the enactment of the Government of India Act 1990. Okay, so from uh, one was the Government of India Act of 1858 and this is the second Government of India Act 1919. Okay, this is the second, and the last of the Government of India Act will be 1935. Okay, so there were in total three Government of India Acts: Government of India Act of 1858, Government of India Act of 1919, and Government of India Act of 1935. Okay, so today we are going to discuss about the main provisions as well as the causes for the enactment of the Government of India Act 1919. Okay, so Government of India Act 1919. Okay, so see, first of all we are going to discuss about the causes for the enactment of the Government of India Act of 1990. Okay, so there must have some defects or the demerits, okay, in the Indian Council Act of 1909. Okay, 1909, which is also known as the Morley-Minto reforms. Okay, and this Government of India Act of 1919 is known as Montague-Chelmsford reforms. Okay, so now let us see. This Government of India Act of 1919 is also known as Montague-Chelmsford reforms. Okay, Mr. Montague was the Secretary of State. Secretary of State, and Mr. Chelmsford was the Viceroy of India. Okay, see, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग मोंटेग-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इसमें मोंटेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेल्मसफोर्ड वाइसरॉय थे इंडिया के. ठीक है, नाउ सी, causes for the enactment Government of India Act 1919. Okay, so see, there were many demerits, okay, of the Indian Council Act of 1909. Okay, among the chief demerits, okay, some of which I am going to discuss, okay, with you people. So see, one major defect was the introduction of communal representation. Okay, one major demerit was the introduction of communal representation system in India. Okay, through which minorities were given reservation in the electorate process. Okay, and they were to be elected only by the Muslim voters. Okay, and not by non-Muslims. Okay,
and the other provisions were indirect election, okay, not direct election. Parliamentary form of government was not introduced, okay, only legislative council was functioning, but the parliamentary form of government was not functioning, okay. So these were some of the contradictory reforms, okay, which needs to be followed, okay. So in order to reform the Indian Council Act of 1909, Government of India Act of 1919 was enacted, okay. So see, apart from these, there were also some major causes which also I am going to discuss, okay. See, before the enactment of the Government of India Act 1990, bureaucratic form of government was running in India, okay. So it was felt necessary, okay, to shift the bureaucratic type of government towards the legislative type of government, okay. नौकरशाही से किनारा करके और विधेयक रूप में, मतलब विधायिका के रूप में गवर्नमेंट को लाने की बात चली, ठीक है, कि नौकरशाही बहुत हो गया, नौकरशाही से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि सिस्टम खराब होते जा रहा है, ठीक है। सो लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों के लिए जो नीतियाँ बनेंगी वो लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा ही बने, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा ही लोगों के लिए नीतियाँ बने, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई और द्विसदनात्मक सदन का निर्माण का बात किया गया, ठीक है। इसमें लोअर हाउस और अपर हाउस सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू लाया गया, ठीक है। बाई कैमरलिज्म सिस्टम मीन्स द्विसदनात्मक, ठीक है, सबसे पहले इस एक्ट से आया। फिर सेपरेशन ऑफ वर्क, ओके, बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर विच दे वेर टू enact policies in their respective subjects. Central as well as the provincial governments were given chances to or the were authorized. Central and the provincial governments were authorized to formulate policies for their respective subjects in their field. Okay, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अपना अपना क्षेत्र था कार्य करने का, कार्यों का बंटवारा हो गया और अपने अपने क्षेत्र के लिए सभी स्वतंत्र रूप से पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र थे। और इतना ही नहीं, इतना होने के बाद भी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, वो यूनिटरी ही रहा, यानी केंद्रीयकरण ही रहा, लेकिन फिर भी सेंट्रल और स्टेट लिस्ट को बांट दिया गया, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस विषय वस्तु पे काम करेगी, किस किस विषय पे, किस किस सब्जेक्ट पे, और स्टेट गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट पे रूल्स और रेगुलेशन फॉर्मुलेट करेगी, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसा कि अभी है वहीं से लिया गया था 1919 में जो ये आया डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, ओके, और नीतियाँ बनाने के लिए दोनों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई, ठीक है। तो वही चीज़ अभी भी है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेयर गिवन टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके, वन वाज रिजर्व सब्जेक्ट एंड अदर वाज ट्रांसफर्ड, ओके। आई विल डील अबाउट दिस थिंग्स in the main provisions of the Government of India Act 1919. But now main focus area is towards the causes for the enactment of the Government of India Act 1919. Okay, so see, indirect election, lack of parliamentary form of
Okay, and this communal representation NOI Hindus as well as Indian National Congress. Okay, see, communal representation system which was introduced through the Act of Indian Council Act of 1909, NOI Hindus as well as Indian National Congress. Okay, so in the words of Madan Mohan Malviya, who was a president of the INC in the 1909 session of INC at Lahore. लाहौर में जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था 1909 में, उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का निंदा किया अपने शब्दों में, जिसके अनुसार this system allowed and tried to bring the through which the majority being driven to a corner by the minority. And what makes the matter worse is that the privileges were being granted only to Muslim minority fellows, and nothing was said and done for other minority, especially Hindus in East Bengal, Punjab and Assam. It looks that for them the matter was kept in cold. See, in the words of the president of INC, Indian National Congress, Madan Mohan Malviya, okay, he reflected his disappointment over the communal representative system, okay, which was introduced through the Act of Indian Council Act of 1909, okay, that
This system allowed and tried to bring the system through which the majority being driven to a corner by the minority. Okay, and what makes the matter worse, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मुद्दे को गंभीर बनाता है, सबसे ज़्यादा तो जो मुद्दे को गंभीर बनाता है वो ये कि जो लाभ पहुंचाया जा रहा था वो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी को, और जहाँ पे हिंदू लोग अल्पसंख्यक थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा था। जैसे कि हिंदू लोग ईस्ट बंगाल में, यानी बांग्लादेश जो अभी है, सो ईस्ट बंगाल में अल्पसंख्यक में थे, पंजाब में भी अल्पसंख्यक थे हिंदू, और आसाम में भी हिंदू लोग अल्पसंख्यक थे। तो वहाँ के लिए हिंदुओं के लाभ की कोई बात नहीं की गई, ठीक है, और सिर्फ मुस्लिम जो अल्पसंख्यक थे उनको लाभ पहुँचाने की बात की गई, ठीक है। तो इस पर उन्होंने नाराजगी जताई, मदन मोहन मालवीय ने। इट लुक्स दैट फॉर देम द मैटर वाज केप्ट इन कोल्ड, ठीक है। इट लुक्स दैट फॉर देम द मैटर वाज पुट इन कोल्ड, ओके। सो सी नाउ सी अदर कॉजेज। See, on 20 August 1917, the British government announced that its objective was to provide the Indians with the responsible government gradually. Okay. So, on 20 August 1917, the British government declared that their objective was to provide Indians with a responsible government. With the responsible government. Therefore, the Britishers are going to enact Government of India Act 1919. Okay. A break in bureaucratic system of government towards legislative form of government. Okay. देखिए, एक और जो कॉज था प्रमुख वो ये था कि थोड़ा सा तो अधिकार दे दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को, मतलब बजट डिस्कस करने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए तो अधिकार दे दिया गया, लेकिन वो बजट में किसी तरह का बदलाव लाने के लिए दबाव नहीं बना सकते थे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पे। और अगर वो किसी तरह का प्रश्न पूछते तो जरूरी नहीं था जो कार्यपालिका उनके प्रश्नों का उत्तर दे दे, और इसके लिए लेजिस्लेटिव मेंबर उन पे, मतलब कार्यपालिका पे दबाव भी नहीं बना सकता था। सो ये भी एक प्रमुख कारण था। ओके, ऑल्दो the members of legislative council were empowered to discuss budget and ask question to executive
to make changes in the list of items of budget, and also he would not pressurize an executive to answer his question. It was left for an executive to reply a question or not. See, although the members of Legislative Council were empowered to discuss budget, okay, and ask questions to executive, but the members were not empowered enough to make changes in the list of items of budget, and also he could means they could not pressurize an executive to answer to their questions. It was left for an executive to reply a question or not. ठीक है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव पे, कार्यपालिका पे निर्भर करता था कि वो किस प्रश्न का उत्तर दे और किस पे वो मौन धारण कर ले, और लेजिस्लेटिव उन पे दबाव नहीं बना सकता था. ठीक है, और बजट पर डिस्कशन करने का अधिकार मिला, लेकिन बजट का जो प्रावधान होता था, ठीक है, बजट की जो नीतियाँ थी उसमें सुधार लाने के लिए वो दबाव नहीं बना सकते थे कार्यपालिका पे, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे. कोई सुधार लाने के लिए सजेशन नहीं दे सकते थे, अगर देते तो उसके लिए वो दबाव नहीं बना सकते थे. ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव स्वतंत्र था. ठीक है, see, the British government had adopted the dual policy. On the one hand, the British were advocating that they are doing the public welfare works and are destined to provide Indian people a place in the legislation. Okay, and on the other hand, they were trying to divide Indians into many groups. Okay, so that their rule can overlast. Okay, or long last, so that the rule of the Britishers should long last. Okay, so see, dual policy of Britishers. On the one hand, they were telling that they are going to bring legislation and abolish bureaucracy. Bureaucratic system of government. Legislative.
policy of divide and rule. Say, British government were reflecting their dual policy. Okay, on the one hand they were telling that they are going to bring legislative reforms and abolish bureaucratic system of government, and on the other hand they were trying to divide Indians into many groups and had adopted the policy of divide and rule. Okay, abolish bureaucratic system of government gradually, and on the other hand they were trying to divide Indians into many groups and had adopted the policy of divide the Indians and then rule. Okay, so now see the next point. See, the last cause which I am now going to discuss is the that in 1900, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 1905 में जो ऐसा किया गया तो उस समय मुस्लिम बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चूँकि ईस्ट पाकिस्तान जो है, यानी कि अभी जो ईस्ट बंगाल जो है, यानी अभी जो फिलहाल बांग्लादेश है, ठीक है, वहाँ पे चूँकि मुस्लिम लोग मेजोरिटी में थे और उसको एक अलग प्रोविंस बनाने की बात बनाया गया 1905 में। तो मुस्लिम खुश हुए और सोचे कि ये हमारे फेवर की बात है, ठीक है। लेकिन जब 1911 में, ठीक है, फिर से उसको यूनाइट कर दिया गया, ये बेवकूफ़ी हुई गवर्नमेंट के तरफ से। फिर से यूनाइट कर दिया क्योंकि हिंदू विरोध करने लगे और देश में बहुत लोग थे, जितने पढ़े लिखे लोग थे उस समय के शिक्षित, वो लोग भी अपने राइटिंग के द्वारा, यानी कि लेखों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से विरोध करने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1911 में रीयूनाइट कर दिया, मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को एक कर दिया। तो मुस्लिमों को झटका लगा, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये हिंदुओं के फेवर की बात हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुओं के तरफ काम कर रही है और मुस्लिम को के खिलाफ काम कर रही है। उसके अलावा क्या हो गया, टर्की से युद्ध हो गया इनका, इंग्लिश का, मतलब अंग्रेज़ों का टर्की के साथ संबंध खराब हो गया, युद्ध हो गया, ठीक है। तो उसका भी विरोध करने लगे ये लोग, भारत के मुसलमान। टर्की में कुछ हो रहा था तो उसके लिए यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिए, ठीक है। उनको लगा कि मेरे धर्म के खिलाफ काम हो रहा है वहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लैंड और रसिया एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर ली है ईरान के बारे में, ईरान के खिलाफ, मतलब पर्सिया उसको कहा जाता था, पर्सिया के खिलाफ एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर ली है, ठीक है, इंग्लैंड और रसिया। वो भी इनको खराब लगा। फिर उसके बाद खराब लगने वाली बात ही थी। फिर उसके बाद बल्खान वार्स हो गया। बल्खान एक, मतलब बल्खान कुछ कंट्रीज़ हैं, उसमें कम से कम 10-12 कंट्रीज़ हैं, जैसे बोलीविया है, एल्बानिया है, ठीक है, ग्रीस वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो बोलीविया एक कंट्री है, ठीक है। तो बल्खान वार्स जो 1912 में हुआ, उससे भी ये लोग खिन्न थे। तो मिला जुला के ये सारी जो नीतियाँ हुई और ये जो सारे देश और कुछ विदेश में जो घटनाएं हुई, उससे मुस्लिम नाराज़ हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, वो टर्की में जो कुछ हुआ, ठीक है, उसके लिए ये लोग टर्की के प्रति सहानुभूति दिखलाने लगे। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस तुर्क के प्रति सहानुभूति दिखलाने लगे, जिसके कारण मुस्लिमों को लगा कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ठीक है और मुस्लिम विरोधी नहीं है। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में मुस्लिम लीग फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, इंडियन मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो वो मुस्लिम लीग
इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेपरेट हो गई थी, ठीक है। लेकिन लखनऊ पैक्ट में जो 1916 में हुआ था, ये सब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में यूनिफिकेशन हो गया, मर्ज हो गए वो आके। और इतना ही नहीं, 1916 में मुस्लिम लीग ही नहीं जुड़े, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी दो विभाग में बट गया था, दो भागों में बट गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, इसी सेशन में 1916 के ही सेशन में, जहाँ पे मुस्लिम लीग भी आके मिले और जो गरम दल के नेता थे वो भी आके मिले, ठीक है। सो लखनऊ सेशन वाज द सेशन इन व्हिच INC became more powerful with the unification of Muslim League as well as extremist leaders. Okay, so now let us discuss. In 1905, East Bengal was separated from West Bengal. So Muslims became happy, but after the nationwide agitation, when in 1911 the West Bengal as well as East Bengal was again reunited, the Muslims became angry and annoyed, and they began to think that these Britishers are favoring Hindus. In 1911, Odisha was formed a new state by separating from Bihar, and the national capital was transferred from Calcutta to Delhi. See, in 1905 East Bengal was separated from the West Bengal. Okay, so Muslims became happy, but after the nationwide agitation, जब इसका पूरे देश में विरोध होने लगा, ठीक है, then in 1911 West Bengal as well as East Bengal was again reunited. The Muslims now became angry and annoyed, and they began to think that these Britishers are favoring Hindus. ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो अंग्रेज हैं,
ये हिंदुओं के पक्ष में हैं, ठीक है। एंड इन 1911 उड़ीसा वाज फॉर्म्ड ए न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग फ्रॉम बिहार। उड़ीसा 1911 में एक अलग राज्य बना बिहार से हट के। एंड नेशनल कैपिटल व्हिच वाज कलकत्ता वाज ट्रांसफर टू दिल्ली, और नेशनल कैपिटल जो था कलकत्ता में वो ट्रांसफर होकर दिल्ली में चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ हैं, इंटरनेशनल कुछ घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं जो कि मुस्लिमों को और ज़्यादा उत्तेजित कर देती हैं ब्रिटिश कंपनी के, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। कंपनी नहीं, शासन, ठीक है। सी apart from this Anglo-Turkey war, Balkan war and Balkan war in 1912 and a secret agreement of Russia and England for Persia, Iran, infuriated Muslims ऑफ इंडिया से। और उन सभी कारणों के साथ साथ ये भी एक कारण था जो विदेश में घटनाएं घट रही थी, जो कि जैसे कि एंग्लो टर्की वार, बल्खान वार जो 1912 में हुआ, और एक सेक्रेट एग्रीमेंट रसिया और इंग्लैंड के बीच में ईरान के खिलाफ, ठीक है, जो हुआ। उससे मुस्लिम्स, भारतीय मुस्लिम्स काफ़ी उत्तेजित हुए और क्रोधित हुए, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं थी जिसके कारण मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाना पड़ा 1919 में, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे। See, now I am going to discuss about the main provisions of the Government of India Act 1919. Okay, so now see, main provisions of the Government of India Act 1919. Okay, see, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, सब्जेक्ट का बंटवारा हो गया। जो लिस्ट था जिस पर कि पहले केंद्र नीतियाँ बनाती थी राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी, तो वो सब्जेक्ट का, विषय का बंटवारा हो गया कि किन किन क्षेत्रों में राज्य अपना नीतियाँ स्वयं बनाएंगी और केंद्र बनाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो फॉर्म था, टाइप था, वो सेंट्रल ही रहता, सेंट्रलाइजेशन ही रहता और यूनिटरी फॉर्म ही रहता गवर्नमेंट का, मतलब एकीकरण ही रहता, ठीक है, विकेंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीयकृत ही रहता, ठीक है, गवर्नमेंट का प्रकार। सो इट रिलैक्स provincial legislation in terms of legislation of provinces. It not only demarcated
their respective list of subjects, although the government was to continue the centralized as well as unitary of government. See, this was the major provision which was introduced. Okay, separation of the subjects for the running of the government, for which the state as well as the central government were authorized to formulate the policies in their respective list of subjects. ठीक है, मतलब ये महत्वपूर्ण प्रावधान था जो कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लाया गया, जिसके तहत राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों अलग अलग कर दिया गया। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर राज्य सरकारें स्वतंत्र थी, ठीक है, नीतियां बनाने के लिए, और केंद्र सूची के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र था नीतियां बनाने के लिए, और इसके साथ कुछ कंकरेंट लिस्ट भी था, ठीक है, जिस पर दोनों समान रूप से बना सकता था। ठीक है, और लेकिन सब्जेक्ट का विषय सूची के बंटवारा होने के बाद भी ये एक इम्पोर्टेंट थिंग था कि गवर्नमेंट का जो प्रकार था वो केंद्रीयकृत और एकात्मक ही रहता। ठीक है, गवर्नमेंट सेंट्रलाइज ही रहता। ठीक है, न कि कंप्लीट फेडरल हो जाता। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। See, it further divided the provincial subjects into transferred and reserved। देखिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो था उसमें भी दो तरह का वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होता और दूसरा रिजर्व्ड होता। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या था, ठीक है, और रिजर्व सब्जेक्ट क्या था। ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। सी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वेर दो सब्जेक्ट्स who were to be administered by the governor with the members of legislative council, okay, and were responsible to the legislative council. Okay, see, transferred subjects were the subjects which were to be administered by the governor with the aid of members of legislative council and were to be responsible for legislative council. Okay, see, transferred subjects were those subjects which were to be administered by governor. Okay,
विथ द एड ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को साथ में लेके, ठीक है, जिस पर बहस किया जा सकता था, ठीक है, उनको अपनी विश्वास में लेके, एंड वेयर टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन सब्जेक्ट्स पे ये लोग गवर्नर और लेजिस्लेटिव मेंबर जो थे ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑन द अदर हैंड रिजर्व सब्जेक्ट्स वेयर these subjects which were to be administered by governor with his executive council, but were not responsible legislative council. See, transferred subject and reserved subject. Okay, transferred subjects were the subjects under which the subjects were to be administered by the governor with the aid of legislative council members and were responsible to the legislative council. But for the reserved subjects which were to be administered by governor but with his executive council, okay, governor with its executive council member and were not responsible to legislative council, ठीक है, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट पर जो भी फैसले होते या निर्णय लिया जाता उसके लिए गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर उत्तरदायी नहीं होते लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति, ठीक है, विधायिका परिषद के प्रति ये लोग जिम्मेदार नहीं होते। रिजर्व सब्जेक्ट में निर्णय स्वयं ले लेते ऑफिशियल मेंबर और गवर्नर मिलके, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर विथ द एड ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सो दिस सिस्टम, सी दिस सिस्टम was known as डायरार्की, डायरार्की, इसको डायरार्की कहा गया, ठीक है। डायरार्की इज ए ग्रीक वर्ड which means double government, double rule. Diarchy is a Greek word which means double rule, ठीक है। और इस सिस्टम को जहाँ पे दो तरह का सब्जेक्ट आ गया प्रोविंस में, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, ठीक है, तो इसको कहा गया डायरार्की मीन्स डबल रूल, ठीक है। से 2-3 जगह आ चुका है डायरार्की, डुअल गवर्नमेंट। सबसे पहली बार कहाँ पे आया? रेगुलेटिंग एक्ट में, जहाँ पे निजामत और दीवानी वो था, तो वहाँ पे डबल गवर्नमेंट की बात की गई। फिर डबल गवर्नमेंट कहाँ पे आया? पिट्स इंडिया एक्ट में, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एग्जिस्टेंस में आ गया, और पहले से क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो बॉडी थे जहाँ पे दोनों के पावर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स देखता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स और अपॉइंटमेंट देखता कंपनी के सर्वेंट के, और पॉलिटिकल अफेयर्स कौन देखता? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो वहाँ भी डबल गवर्नमेंट आ गया, तो कुल मिलाकर 3 डबल गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। 1973 से लेके 1919 तक में 3 डबल गवर्नमेंट आ गया। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सभी जगह स्थितियाँ मैंने स्पष्ट कर दी हैं कि कहाँ पर क्यों आया डबल गवर्नमेंट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट क्यों आया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चलते। रेगुलेटिंग एक्ट में क्यों आया? कंपनी के हाथ में दीवानी आ गया, ठीक है, मतलब राइट्स रिलेटेड टू
कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। और मुगल रूलर्स के पास, ठीक है, और मुगल नवाबों के पास निजामत रह गया, मीन्स केसेस रिलेटिंग टू क्राइम्स, क्राइम से रिलेटेड जो केस थे उसको देखते हैं। तीसरा डबल गवर्नमेंट और डायरकी जो है वो यहाँ पे आ गया कि स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, जो प्रोविंसेस को अधिकार मिला, सब्जेक्ट का जो बंटवारा हुआ, विषय सूची जो बना, केंद्र और राज्य सूची, उसके में क्या हो गया, दो तरह का सब्जेक्ट आया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। तो रिजर्व का अलग रूल था कि वो सिर्फ गवर्नर विथ द एड ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, okay, they were to be administered by governor with the aid of executive council members and were not responsible to legislative council. And for the transferred subjects, okay, it was to be administered by governor with the aid and advice of members of legislative council, but were responsible to legislative council. So यहाँ पे डबल रूल आ गया, so यहाँ भी डायरकी हो गया, ठीक है। मीनिंग स्पष्ट है। नाउ सी द नेक्स्ट। गवर्नमेंट का जो भी कार्यशैली होता है वो द्विसदनात्मक हो गया, ठीक है। देखिए, बायकैमेरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट का जो भी फंक्शनिंग होता वो द्विसदनात्मक हो गया, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। सो देखिए, बायकैमेरलिज्म का मतलब हो गया द्विसदनात्मक, ठीक है। बायकैमेरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड and it was to consist of upper house means council of state and lower house legislative assembly, and majority of members were to be elected, ओके। गवर्नमेंट के प्रॉपर फंक्शन के लिए, ठीक है, सरकार की गतिविधियां दो भागों में, दो सदनों में चलती, ठीक है। उसके लिए एक अपर हाउस हो गया और दूसरा लोअर हाउस हो गया, ठीक है। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो बहुसंख्यक मेंबर्स होते हैं, बहुसंख्यक सदस्य होते हैं, वो इलेक्शन के थ्रू आए होते हैं, ठीक है, आएंगे, ठीक है, अब से इस एक्ट में। वाइसरॉयज काउंसिल which was consisting of 6 executive were now to induct 3 Indians out of 3 Indians out of 6,
members except the commander in chief से वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसमें कि 6 सदस्य होते एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो उस 6 सदस्य में अब से 3 मेंबर भारतीय होते, ठीक है, और 3 मेंबर इंग्लिश होते, और सिर्फ एक्सेप्शन था कि कमांडर इन चीफ का जो पद होता, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स को ही मिलता, सिर्फ कमांडर इन चीफ को छोड़ के, ठीक है, 3 जो मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इंडियन होते हैं, ठीक है। वायसराय's executive council which was to consist of 6 members out of which 3 were to be Indian, okay, except the commander in chief. इस एक्ट में क्या किया गया और कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो था सिस्टम, जो कि पहले सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर लागू होता था, उसको दूसरे अल्पसंख्यकों को भी दे दिया गया, ठीक है, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, ओके। सोचिए द प्रोविजन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट was extended to other minorities also, like Indian Christians, Europeans, Sikhs, Anglo-Europeans, etc. Electoral franchise was extended and were given to only on the basis of property tax or education। See, ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको मुस्लिम अल्पसंख्यक से भी आगे बढ़ा के, ठीक है, जो जैसे सिख थे, एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस थे, उन लोगों को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी जो था, मतलब इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का जो अधिकार था वो पहले बहुत कम को था, 2-3% को था, तो इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी वाज एक्सटेंडेड एंड वे आर गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, और ये जो अधिकार था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का वो सिर्फ इस आधार पे दिया जाता था, प्रॉपर्टी और जो लोग टैक्स देते थे गवर्नमेंट को और एजुकेशन, इस आधार पे दिया जाने लगा, ठीक है। से it created a new office of High Commissioner in England, okay, in order to help Secretary of State for India into his works, okay। सी एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई लंदन में, ठीक है, ताकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो कम्बरसम यानी भारी भरकम जो काम था उनको हल्का किया जा सके, ठीक है। तो ए पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर
was created in London by this provision so that he could administer some of the works of Secretary of State. Okay. Provision was also made to establish a public service commission and as a result in 1926 a central public service commission was established to recruit servants of the company से एक हाई कमिश्नर के पद का स्थापना किया गया, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो वर्क था लंदन में उसको कम कर सके, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो बोझिल वर्क था उसको कम किया जा सके। और दूसरा एक पब्लिक सर्विस के गठन की बात की गई, ठीक है, जो 1926 में जिसका गठन किया गया केंद्रीय मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में, ठीक है, ताकि सिविल सर्वेंट को की भर्ती की जा सके, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल जो बजट था उसको प्रोविंशियल बजट से अलग किया गया, मतलब प्रोविंसेस में अलग बजट बनता और सेंटर में अलग बजट बनता, ठीक है। और इसके साथ ही इस प्रोविज़न में एक और चीज़ आया कि हर 10 साल पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909 का वो कैसे रन कर रहा है इंडिया में, ठीक है, उस पर रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया, ठीक है, जो कि बाद में साइमन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना लगा, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि उसके जो 7 मेंबर थे और साइमन कमीशन खुद भी और उसके साथ जो सदस्य थे वो सभी इंग्लिश थे, ब्रिटिश ओरिजिन के थे, ठीक है। तो इंडियंस को उसमें जगह ना मिलने के कारण उसका विरोध किया गया। सो द लास्ट 2 पॉइंट्स, प्रोविंशियल बजट were to be separated from the central budget and the establishment of a statutory commission to look into the running of the constitution as well as report its functioning. Hence, Simon Commission
Commission. See, through the Government of India Act 1919, provincial budgets were separated from the central budget. Okay, and apart from the separation of budgets, okay, other provision was the establishment of a statutory commission who would look about the running of the constitution in India and also report on the functioning of the act and the constitution. Okay, and first such statutory commission was Simon Commission of India. Okay, so the Government of India Act of 1919 is finished. Okay, and we will see the next act in the next class.